देखिए, दिल्ली में पहले ये 1930s 40s में बिल्कुल डेजर्ट था कल्चर के नाम पे। कोई म्यूज़िक का कुछ नहीं, कोई कहीं आप सीख नहीं सकते थे, कोई सार्वजनिक जगह थी नहीं, कोई संगीत सीखना चाहे तो बिल्कुल नहीं, और सुनने की भी सुविधा नहीं थी। सिर्फ रेडियो में प्रोग्राम होता था या बड़े बड़े लोगों के घर में कार्यक्रम होता था। ऐसे में विष्णु दिगंबर जी की परंपरा को आगे चलाते हुए मेरे पिताजी ने 1939 में कनॉट प्लेस में हमारा विद्यालय शुरू किया। ये साल हमारा 75वां साल है विद्यालय का। तो ऐसे हालात में उन्होंने क्या, शुरू में विद्यार्थी आते नहीं था, कोई भेजता नहीं था कि भाई संगीत तो उस टाइम अच्छा माना नहीं जाता था। तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि आइए आप, पेरेंट्स को बोला कि अगर बेटी सीखती है तो आप आके बैठिए साथ में, ऐसी कोई बात नहीं। तो धीरे धीरे विश्वास जगा और अभी हमारे 1100 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, और वेटिंग लिस्ट जैसा होता है हमें मना Ma'am, today is the second day of Takshila Utsav. Yesterday we had enjoyed Dhrupad music. What are your expectations for today? It gave me a lot of inner satisfaction, and I felt that music is so pure
so holy, and it seems that it gave me a lot of relaxation after a long day's work. When I came back to a platform of Takshila Utsav, it gave me immense relaxation, I would say. Ma'am. Youth of today needs to get inspired. Thank you, ma'am, for your time. Thank you very much, Dipsites, and I am very sure that that tomorrow of all Dipsites of Delhi Public School Patna will be very, very bright. All the best to all of you. Today we have with us the head of the department, English, DPS Patna, Ms. Sujata Badani. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, the first question to you is, how are your experiences at the Takshila Utsav? My experiences at the Takshila Utsav, it's been great. It's been quite a few years that we've been experiencing the same. And every year it seems that something new is coming in front of us. Yesterday especially, the first function, the Shivnad, the Damru, the Dhol, everything was good. Yes, there was no Dhol, but everything was just excellent. Ma'am, what is the message that Takshila Utsav is trying to convey to the young minds of India? You know, the young minds, as in the students of our school and a lot of the denizens of Patna, I'd say more than the message that is being conveyed, it is an effort to ignite a choice towards the classical culture, the rich heritage that we have received from our forefathers. So that's the initiative taken by Takshila Utsav. And ma'am, what is your personal message to the young minds of India? Young minds of India, everything cannot be according to your choice. Sometimes the choices that are enforced upon you will become something you really cherish later on, and you will, believe me, at some point of time in your life, start loving these great classical forms of art. I can, surely tell you, trust me when I say this, because it's bound to happen in the long run. Thank you for your precious time, ma'am. And the best part is to see you young, budding reporters as part of the NDTV school program. And the best part for me is to see you do something beyond your textbooks and take such a good initiative. Your parents and the school both. Thank you, ma'am. Sir, what are your views about Takshila Utsav? तक्षशिला एजुकेशनल सोसाइटी दिल्ली ये हर वर्ष पटना में एक संगीत का आयोजन करती है। साथ में बिहार में विजुअल आर्ट के डेवलपमेंट के लिए एक कला प्रदर्शनी भी आयोजित करती रही है। यहाँ हुसैन की और बड़े बड़े कलाकार जो पटना से बाहर के हैं उनके चित्रों की प्रदर्शनी होती रही है। ये सुखद संयोग है कि इस बार तक्षशिला उत्सव में चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। So you have arranged a very good gallery. What do you want to show from these pictures? The name of the exhibition is अपनी माटी। अपनी माटी मतलब बिहार की माटी। माटी प्रकृति की एक देन है प्राणी मात्र को। उस मिट्टी में बिहार की मिट्टी की जो सुगंध है, गंध है, उसका अलग अंदाज है। यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि, मुनि, दार्शनिक, आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक, चाणक्य जैसे राजनीतिज्ञ, अशोक जैसे सम्राट और भगवान महावीर और बुद्ध जैसे आध्यात्मिक पुरुष हुए जिन्होंने मानव कल्याण के लिए काम किया। बिहार की माटी को अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपको लगेगा बिहार की माटी एक विचारों की क्रांति की माटी है।
यहाँ पर विचारों की क्रांतियाँ होती रही हैं। वैदिक काल में मेरा यही संदेश है कि इस विकास के दौर में अगर हम अपनी परंपरा, अपने इतिहास, अपनी कला, अपनी संस्कृति को जानें तो हमारा विकास एक नए रूप में भारतीयता के साथ होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की गरिमा को बढ़ाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं सी दिस पेंटिंग पर्टिकुलरली, गुरु नानक देव की एक लाइन है, एक नूर से सब जग उपजा। मतलब एक बिंदु से पूरी सृष्टि, जलचर, थलचर, नवचर पैदा किए, और आज बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे वैज्ञानिक भी गॉड पार्टिकल खोज लिए हैं। आप सबको धन्यवाद देता हूँ। तक्षशिला एजुकेशनल सोसाइटी दिल्ली को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने बिहार के एक कलाकार की कृतियाँ दिखाने का बिहार के लोगों को मौका दिया। बहुत अच्छा। और एक ज़माने में पटना में दशहरा में शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होता था, बल्कि मैंने शास्त्रीय संगीत के प्रति आकर्षण मेरा पटना के दशहरा कार्यक्रम के वजह से ही हुआ था। उसके बाद किन्हीं कारणों से वो कार्यक्रम बंद है। आज मैंने अभी जो कार्यक्रम चल रहा है कल से आज तक, हमको वही दशहरा का याद आया। कभी पटना में इस तरह से इतने अच्छे बड़े कलाकारों को सुनने का मौका नहीं मिला था। तक्षशिला उत्सव के माध्यम से मैंने सुनने का अवसर मिला। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है तक्षशिला समूह के लोगों का, और हम उनको साधुवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस परंपरा को लोग जारी रखें।